دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جہاں بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے مشکلات ہوتی، ان کو اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے بہت سی جنگیں لڑنی پڑتی۔ وہاں وہ بادشاہ اپنی فتوحات کا اس طرح جشن مناتے کہ آنے والے کئی سالوں تک ان کے محلوں میں فتح کی گونج رہتی، اور جہاں بادشاہوں کی جشن کی اور عقل مندی کی بات آئی تو وہاں ہم اکبر بادشاہ کا ذکر ضرور دیکھتے ہیں، اور جہاں اکبر بادشاہ کا ذکر آئے تو وہاں اس کی سب سے ذہین اور عقل مند وزیر بربل کا بھی ضرور ذکر آتا ہے۔ دوستو بربل اپنی عقل مندی کی وجہ سے ایک پان کی دکان پر چند سکوں کی ملازمت کرنے والا شہنشاہ اکبر کا سب سے قریبی وزیر بن گیا، اور نہ صرف شہنشاہ کا وزیر بنا بلکہ شہنشاہ کے محل میں سب سے ذہین اور عقل مند وزیر کہلانے لگا۔ ایک دن اکبر بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اکبر بادشاہ نے کہ دل میں خیال آیا، اور اکبر بادشاہ اپنی تمام وزیروں کو کہنے لگا کہ اے وزیروں، میرے نظر میں اب ہمارے محل میں بربل سے زیادہ نہ ہی کوئی چالاک، نہ ہی کوئی عقل مند اور نہ ہی کوئی ذہین ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی بربل کی طرح عقل مند نہیں ہوں۔ تمام وزیروں نے اکبر بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اتنے میں اکبر بادشاہ کی نظر ایک ایسے وزیر پر پڑی جو بالکل خاموش تھا، نہ ہی اسی نے بادشاہ کے بات پر کوئی تنقید کی اور نہ ہی اکبر بادشاہ کے بات میں ہاں ملائی۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، اور اس نے اسی وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری بات سے تم سمت نہیں ہو؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بربل تمام درباریوں حتیٰ کہ اکبر بادشاہ سے بھی زیادہ عقل مند ہے؟ تو وزیر نے کہا، حضور بے شک بربل عقل مند بھی ہوگا، ذہین بھی ہوگا، اور اکبر بادشاہ انہیں شہنشاہ اعظم کا چاہیتا بھی ہوگا، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا جب تک کہ بربل اپنی عقل مندی کو کسی دن ثابت نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے کہا، پھر کسی دن کی کیا ضرورت؟ ابھی تم کوئی بربل کو چنوتی دو، اور اگر بربل نے تمہاری چنوتی کو حل نہ کر سکا تو میں اس کے بعد اعلان کر دوں گا کہ بربل نہ ہی تمام وزیروں سے ذہین ہے اور نہ ہی عقل مند ہے۔ وزیر نے کہا، حضور اگر ایسی بات ہے تو بربل میری ایک پہیلے کو سلجھا دے تو میں بربل کو سب سے ذہین مان لوں گا۔ اکبر بادشاہ نے بربل کو دربار میں بلایا اور اسی وزیر کو کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کون سی پہیلے ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور بربل اگر ہم بیل کا دودھ لا کر دے تو میں اس کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھ دوں گا۔ یہ سن کر باقی وزیر بھی سوچنے میں مصروف ہو گئی کہ آخر بربل کیسے بیل کا دودھ کیسے لائے گا، لیکن اس وزیر کی اس پہیلے پر وزیر بربل مسکرانے لگا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک دن کا وقت دیں، میں آپ کے سامنے بیل کا دودھ لے کر حاضر ہوں گا۔ اکبر بادشاہ نے بڑے حیران ہوا اور کہا، اتنی مشکل چنوتی کے لیے تم صرف ایک دن کا وقت مانگ رہے ہو؟ بربل نے کہا، جی حضور ایک دن کا وقت بھی کافی ہے۔ اس کے بعد بربل محل سے چلا گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو اکبر بادشاہ کمرے میں آرام فرما رہی تھی کہ اچانک کسی چیز پر ڈنڈا مارنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر پر کوئی ضرب لگا رہا ہے۔ اس شور کی وجہ سے اکبر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی
अकबर बादशाह ने फौरन एक सिपाही को बुलाया और कहा कि जाओ बाहर कौन शोर कर रहा है, इस गुस्ताख को रोको। अगर उसी तरह शोर होता रहा तो मैं किस तरह आराम करूंगा। फौरन बाहर गया और शोर को ख़त्म कर दिया और अकबर बादशाह दोबारा सो गया। थोड़ी ही देर गुजरी कि दोबारा वही आवाज़ आना शुरू हो गई। अकबर बादशाह की फिर से उस शोर के वजह से आंखें खोल गई और उसने अपनी एक सिपाही को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जाकर शोर ख़त्म कराओ, और इस बार तुम सिर्फ ये शोर ख़त्म नहीं करोगे बल्कि जिसने भी इस गुस्ताखी का सोचा इसको पकड़कर मेरे पास लाओ, इसको सख्त सज़ा मिलेगी। अकबर बादशाह का सिपाही बाहर महल के निकला तो देखा कि एक लड़की नहर के किनारे कपड़े धो रही थी। और सिपाही बड़ा हैरान हुआ और इस लड़की को पकड़कर अकबर बादशाह के सामने हाजिर किया। अकबर बादशाह ने सिपाहियों को कहा कि इस लड़की को ज़िंदान में डाल दो, सुबह ही मैं इसकी सज़ा का तायीन करूँगा। इसके बाद अकबर बादशाह दोबारा सोने के लिए कमरे में चला गया। सुबह का वक़्त हुआ, अकबर बादशाह दरबार में तशरीफ़ लाए। तमाम वज़ीर भी मौजूद थे और वह वज़ीर भी बिरबल की इस चुनौती का इंतज़ार कर रही थी और दूसरी तरफ उस लड़की का भी मुकदमा था। तमाम लोगों की नज़र अकबर बादशाह पर थी कि अब आगे क्या होने वाला है। इतने में एक वज़ीर खड़ा हुआ और कहा, हुजूर आपने तो कहा था कि बिरबल इतना अक्लमंद है, लेकिन वह अपनी मुकर्ररा करदा वक़्त पर नहीं पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा कि उसने आज का कहा था, उसने कोई ख़ास वक़्त नहीं बताया था। आज शाम से पहले अगर बिरबल नहीं आया तो मैं खुद उसकी सज़ा का तायीन करूँगा। इतने में बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि रात जिस गुस्ताख लड़की ने मेरी नींद ख़राब की उसको मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही उस लड़की को पकड़कर बादशाह अकबर के सामने ले आए। बादशाह अकबर ने उस लड़की से पूछा कि बताओ ए लड़की, तुम आधे रात को क्या कर रही थी जिस शोर के वजह से मेरे आंखें खोल गई। उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं कपड़े धो रही थी। अकबर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा कि मुझे तुम अपनी बात तफसील से बताओ कि आधी रात के वक़्त तुम नहर पर मौजूदा अकेले कैसे कपड़े धो रही थी। उसी लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत मेरे वालिदा मेघा चली गई और मेरे अब्बू ने एक बच्चे को जन्म दिया और मैं उसी बच्चे के ही कपड़े धोने के लिए आई थी। ये सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगी और कहा कि बच्चे का दिमाग ख़राब हो गया है। अकबर बादशाह ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अपनी बात शायद उल्टा कह रहे हो, तुम अपनी बात दोबारा दोहराओ। लड़की ने फिर भी वैसा ही कहा कि मेरी अम्मा अपनी मैके में गई है और मेरे अब्बू ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी वजह से मैं ये कपड़े धोने आई। इसके बाद सुनकर तमाम दरबारी फिर से हंसने लगी और कहा कि ये लड़की तो बावूली हो गई है, ऐसा कैसे मुमकिन है। इसके बाद अकबर बादशाह ने कहा, चलो ये बात तो तुम्हारे समझ में आ गई, लेकिन आधी रात को कपड़े धोने का क्या मतलब, ये काम तुम दिन के वक़्त भी कर सकते थे। तो इस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत हमारा मुर्गा हर दिन एक अंडा देता है और मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब वो अंडा दे और मैं उसको बेच कर इससे कपड़े धोने के लिए साबुन ले सकूं। ये बात सुनकर फिर से तमाम दरबारी मुस्कुराने लगी और कहा कि हुजूर एक मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है और एक
बाप बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। इतने में उस लड़की ने कहा कि हुजूर, आपके महल में मौजूदा लोगों की सोच के मुताबिक जब बैल दूध दे सकता है तो फिर एक मुर्गा अंडा क्यों नहीं दे सकता, और एक बाप अपने बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता। अकबर बादशाह ने उस लड़की की ये बात सुनी तो बादशाह अकबर इसके बाद समझ आ गया और उसके बाद उस वज़ीर को कहा कि क्या तुम इस लड़की की बात को समझे। उस लड़की की बात को सुनकर और वज़ीर भी शर्म से सर झुका कर बैठ गया। और इसके बाद बिरबल ने कहा, हुजूर, अगर इसके बाद भी किसी वजाहत की ज़रूरत है तो मैं और भी करने के लिए तैयार हो। अकबर बादशाह ने कहा कि तुम अपनी अक्लमंदी से मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया कि जिस तरह एक मुर्गा अंडा नहीं दे सकता, एक बाप अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, इसी तरह बैल भी दूध नहीं दे सकता। जिस चीज़ की ज़िम्मे अल्लाह ताला ने जुकाम लगाया है और सिर्फ वही कर सकता है। और ऐसी तरह उस वज़ीर ने भी बिरबल के अक्लमंदी को मान लिया कि एक बिरबल ने किस तरह बेहतरीन अक्लमंदी से ये सब कुछ साबित कर दिया। एक दूसरा वाक़या इस तरह हुआ कि एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठा हुआ था। बिरबल शहंशाह के बाएं तरफ बैठा हुआ था और बाकी वज़ीर भी मौजूद थे। दरबार में खुशी का समा चल रहा था। इतने में एक काजी अकबर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहा, हुजूर, मेरे पास एक ऐसा मुकदमा आया जिसको मैं हाल करने से कासिर हूँ और आपकी तरह पूरी हिंदुस्तान में बिरबल की अक्लमंदी के किस्से मशहूर है, लेकिन मैंने कभी बिरबल के अक्लमंदी को अपने आंखों से नहीं देखा। लिहाजा अगर ये मुकदमा जिसको मैं हाल करने से कासिर हूँ, अगर इसको बिरबल हाल कर दे तो मैं भी बिरबल की अक्लमंदी को मान लूँगा। इतने में बादशाह अकबर का एक वज़ीर बोला, हुजूर, अगर हमारी किसी और वज़ीर की ज़हानत पर भी अगर कोई सवाल उठाएगा तो क्या अकबर बादशाह को साबित करना पड़ेगा। अकबर बादशाह ने कहा, नहीं, तुम सब्र करो, मैं अभी काजी को इसकी बात का जवाब देता हूँ। अकबर बादशाह ने काजी को अपने सामने बिठाया और कहा, बताओ क्या मुकदमा है। काजी साहिब ने बताया कि मेरे पास एक औरत आई, उसने कहा कि अपने मैके गई हुई थी। पीछे घर में मेरा शोहर, मेरा एक मुलाजिम और एक घोड़ों के अस्तबल के रखवाले करने वाला एक नौकर और एक घर में मुलाजिम मौजूद थी। जब मैं वापस लौटी तो मेरे शोहर का कत्ल हो चुका था और जब मैंने इन तीनों से पूछा, उन तीनों ने अपनी अपनी जगह पर अपनी बेगुनाही साबित करना शुरू कर दी और सबूतों से भी हमें कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इन तीनों में से किसी ने इस लड़के के शौहर को कत्ल किया। ये देखकर बिरबल ने कहा, हुजूर, बस इतनी सी बात है, मैं चंद ही दिनों में इस मुकदमे को हाल करके दिखाऊंगा। अकबर बादशाह बिरबल से बड़ा खुश हुआ और बिरबल को कहा कि तुम्हें मेरी तरफ से पूरी इख्तियारात है, तुम इस मुकदमे को हाल कर दो। बिरबल ने उस औरत को अपने सामने बुलाया और कहा कि जब तुम घर से गई थी तो क्या ये तीनों घर में मौजूद थे या कोई छुट्टी पर गया हुआ था। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, मेरे जाते वक्त हमारा नौकर अस्तबल का देखभाल कर रहा था, मुलाजिमा घर के कामों में मसरूफ थी और मेरा घर का मुलाजिम और कुछ सामान लेने गया हुआ था। मेरा शौहर घर में मौजूद था। मैं जब दोपहर को वापस लौटी
तो मेरे शौहर के लाश कमरे में पड़ी हुई थी। बिरबल ने एक सिपाही की हुक्म दिया कि जाओ और 4 दुम्बे लेकर आओ। ये देखकर काजी बड़ा हैरान हुआ और अकबर बादशाह भी सोच में पड़ गया। आखिर इस कत्ल से इन दुम्बों का क्या मतलब? जब 4 दुम्बे हाजिर हो गई तो बिरबल ने उन चारों को इन्हीं मकतूल की बीवी, इसके घोड़ों के मुलाजिम, इसकी मुलाजिमा और इसके नौकर को एक एक दुम्बा देती हुई कहा कि 15 दिनों के बाद तुम दोबारा इसी दरबार में हाजिर होना और तुम में से जो भी कातिल होगा इसका दुम्बा बाकी दुम्बों की निस्बत बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। ये सुनकर काजी साहब ने कहा कि ओह दुम्बा कैसे कमज़ोर होगा? अगर कातिल इसको अच्छी तरह चारा खिलाते रहे। तो बिरबल ने कहा ये कोई आम दुम्बे नहीं बल्कि नस्ल वाले दुम्बे हैं और जो भी कातिल इस दुम्बे को घास डालेगा इस घास का उल्टा असर होगा और ये दुम्बा खुद बखुद कमज़ोर पड़ जाएगा। तमाम दरबारी बड़े हैरान हुई कि हमने आज तक तो ऐसी कोई दुम्बे नहीं देखी। वक़्त गुजरता रहा और जब मद्दत मुकम्मल हुई तो सिपाहियों ने इन चारों को अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर किया। जब अकबर बादशाह ने सामने चारों को पेश किया गया तो देखते ही बिरबल ने हुक्म दिया कि पला दुम्बे वाले इन्हीं मुलाजिमा को पकड़ लो, यही इस औरत के शौहर के कातिल है। जब बादशाह अकबर ने देखा तो उस मुलाजिमा का दुम्बा बाकी तीनों की निस्बत सेहतमंद था। बादशाह अकबर ने बिरबल को कहा कि तुमने तो कहा था कि जो कातिल होगा उसका दुम्बा कमज़ोर पड़ जाएगा और उसका तो दुम्बा बाकी तीनों की निस्बत से सेहतमंद है। बिरबल ने कहा हुजूर मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि जो कातिल होगा वह खौफ के वजह से कि कहीं मेरा दुम्बा कमज़ोर ना पड़ जाए और इसको दिन रात चारा डालेगा, पानी पिलाएगा और इस खौफ की वजह से वो इतना खिलाए पिलाएगा कि इसका दुम्बा बाकी तीनों की निस्बत मोटा ताज़ा हो जाएगा और मुझे पता चल गया कि वही कातिल है। और इसी औरत को भी यही खौफ था कि अगर मेरा दुम्बा बाकी की निस्बत कमज़ोर हुआ तो मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए इसने दिन रात इसको खाना खिलाया, पानी पिलाया था ताकि इसका दुम्बा सेहतमंद रहे। और इसी खिलाने पिलाने की वजह से और इस खौफ की वजह से इसका दुम्बा बाकियों की निस्बत मोटा ताज़ा हो गया और इस वजह से यही कातिल है। जब अकबर बादशाह ने इस औरत से मुखातिब होकर पूछा तो वह भी बादशाह के सामने गिर गई और कहा हुजूर इस औरत की शौहर ने मेरे इज्जत पर हमला किया जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया। मैं अपने इज्जत गवाह कर जिंदा नहीं गुजर सकती थी, मैं इसलिए उसको कत्ल कर दिया। अकबर बादशाह ने कहा कि ये सब तुम अपने बचाव के लिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी जिस्म पर कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं था कि जिससे साबित हो जाए कि तुम्हारे इज्जत पर उसी औरत के शौहर ने हमला किया। और इसके बाद काजी बिरबल की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और अकबर बादशाह ने इस औरत को फांसी की सज़ा सुना दी। और ओह काजी भी बिरबल की अक्लमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि आए दिन अदालत में बिरबल का जिक्र करके बगैर ओह